Hello, good morning, students. Today we will start chapter 3rd of class 12th, issue of shares. So in last lecture we had discussed about what is shares, what is debentures, types of shares, in which there were two types of shares, equity shares and preference shares, and these equity and preference shares is subdivided into different types. So in this chapter we will learn classification of share capital. What is share capital? In last lecture I had also told you that the capital structure is consist of two types of capital, own capital and debt capital. So now we start the introduction. In chapter 2 we studied the different sources of finance that a company can use to raise funds. The capital structure of a company consists of its own funds and borrowed fund. ये चीज़ मैंने आपको बताई कि कंपनी का जो कैपिटल होता है वो दो चीज़ों से बनता है, कंसिस्ट ऑफ म्हणजे से बना हुआ। कौन से चीज़ों से बनता है? ओन फंड एंड बोरोड फंड। अभी ओन फंड खुद का पैसा, उसमें क्या क्या होता है ये भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा है। आप एक बार लास्ट जो सेकंड चैप्टर है उसको आप रीड कर सकते हो। बोरोड कैपिटल यानी आप जो बैंक से कर्जा लेते हो, आपका डिबेंचर कैपिटल रहता है, म्हणजे ऐसा कैपिटल जो कंपनी का खुद का पैसा नहीं है, on which company will have to pay the principal as well as interest amount if company make a profit or loss. So these holders are the creditors of the company. So then own funds are made up of equity shares, preference shares and retained earning that the amount you earn and that amount you reinvested in your business, that is also called as plugging back of profit. A company limited by shares raises shares capital by issuing shares. So in this chapter we will study in detail how a company issue different types of shares depending upon its needs. We will also learn about various concepts related to shares. ओके तो देखो अब इसमें कंपनी की नीड्स के हिसाब से कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। दूसरा तो एक बात यह है, शेयर्स का नेचर देखकर लोग उसको परचेस करते हैं। नेचर मीन्स व्हाट? अगर आप इक्विटी शेयर्स परचेस करते हो तो यू बिकम अ ओनर ऑफ द कंपनी, दैट्स मीन्स योर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स व्हाट? आई हैड ऑल्सो टोल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स इफ अ कंपनी मेक्स प्रॉफिट, company will distribute dividend or return your principal amount, and if the company makes no any profit, so the equity shareholder will not get anything. And although they invested lakh of rupees in the company, if the company makes a heavy loss, then that equity shareholder will have to sell their own property to fulfill the liabilities of the company. ओके मैंने आपको क्या कहा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स व्हाट? क्या होता है, जैसे कि अगर कंपनी को नुकसान होता है, आपने इक्विटी शेयर्स परचेज किए और कंपनी को नुकसान हो गया, इक्विटी शेयर्स परचेज करने के बाद में बेटा आप क्या हो जाते हो? आप कंपनी के रियल ओनर बन जाते हो। अब ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है तो आपको सबका पैसा जिससे जिससे आपने लिया है वो आपको पैसे क्या करने हैं, उनको रिटर्न करने हैं। आखिरी में बचता है तो ठीक है, अगर नहीं बचता है तो आपको खुद की प्रॉपर्टी भी एज उसमें सेल कर कर आपको वो जो लॉसेस रहते हैं वो फिलअप करने पड़ते हैं। एंड प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि आपको आपका जो पैसा रहता है, आपका जो डिविडेंड रहता है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, वैसे ही डिबेंचर्स। ओके तो देखो नीचे यहाँ पेज नंबर 40 पे क्या बता रहे हैं? Classification of share capital. Share capital refers to the capital made up of equity shares and preference shares. आपको मैंने बताया usually in share capital the proportion of equity shares is more than preference shares. अभी इसका proportion मतलब मात्रा, preference shares की मात्रा क्यों रहती है? कंपनी क्या करती है, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ना इक्विटी कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विटी कैपिटल मिलने के बाद में वो परमानेंट कैपिटल हो जाता है कंपनी के लिए। ऐसा आप जो डॉक्यूमेंट्री साइन करते हो तो उस पर पूरा लिखा रहता है कि आफ्टर बाइंग इक्विटी शेयर्स यू विल बिकम ओनर। ओनर बन के कंपनी का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी उठानी पड़ेगी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में और एक फ़ायदा ये होता है इक्विटी शेयर्स होल्डर के लिए कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उतना तो आपको मिल जाएगा, दैट मीन्स डिविडेंड आपको मिल जाएगा। लेकिन कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है तो जो लिमिटेड जो उनकी रिजर्व वगैरह रहता है, जो पीएफ वगैरह रहता है, वो पूरा करने के बाद वो एक्स्ट्रा पैसा आप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है।
तो कंपनी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ना इक्विटी शेयर्स ही प्रीफर करती है कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में पता है कंपनी को मुझे पूरा पैसा देना है। शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज ऑथोराइज और नॉमिनल और रजिस्टर्ड, देखो तीनों नाम इसके। अब इसको मैंने आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या होता है, अभी इसमें कंपनी को टोटल चाहिए 10 लाख रुपए, तो 10 लाख जमा करने के लिए कंपनी ने अनाउंसमेंट क्या किया, प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा कि हमारे पास 1 लाख शेयर से, म्हणजे 1 लाख शेयर से हर एक की कीमत 10 रुपये है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि सब एक ही पर्सन सब परचेस कर लेगा। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ऐड किया, लोगों ने ऐड को देखा। अब ऐड देखने के बाद में हर एक इंसान क्या करेगा, कंपनी के बारे में जानकारी निकालने के बाद में इफ़ यू फील दैट कंपनी मेक्स एवरी ईयर एज सुपर प्रॉफिट, सो आप क्या करते हो, उस कंपनी में इन्वॉल्व होते हो, एज अ उस कंपनी के मेंबर बनने की कोशिश करते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शेयर्स थ्रू पैसा कलेक्ट करना कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि इसका पैसा एक साथ नहीं आता है। तो अभी कंपनी ने क्या किया, रजिस्टर्ड करवाते समय उन्होंने बता दिया कि हमें 10 लाख की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे। चलो ठीक है। अब कंपनी एक साथ पूरी इशू नहीं करती है, कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल में क्या दिया, इशूड कैपिटल। लोगों को फिलहाल क्या बताया कि हमारे पास सिर्फ 40,000 इक्विटी शेयर्स है, म्हणजे कंपनी को फिलहाल सिर्फ कितने की ज़रूरत है, 4 लाख की ज़रूरत है। और जो 60 लाख शेयर्स है कंपनी ने वो अनइशूड किया। अभी सिर्फ उसकी एज अ परमिशन हमें रखना है, हम फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको इशू कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने मार्केट में जितने शेयर इशू किए तो उतने ही लोग परचेज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एप्लीकेशन कम है, ज़्यादा भी आ सकते हैं और उतने भी आ सकते हैं। तो इसमें देखो बेटा क्या हुआ है, आपने 40,000 लोगों को बताया कि हमारे पास 40,000 है, लेकिन लोगों ने परचेस कितना किया, सब्सक्राइब बोले तो परचेस कितना किया, 30,000 शेयर्स, म्हणजे आपके पास 3 लाख रुपए आ गए। तो भी 1 लाख जो कमा है उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। चलो ठीक है, अब लोगों ने परचेस किया, अभी अगली बारी क्या आती है, आपको क्या करना है, उनसे पैसे जमा करने। ठीक है, तो जो पैसा अभी कंपनी देखो शेयर्स के ऊपर ना कभी भी एक साथ पैसा नहीं मंगवाती है। उसमें क्या होता है, जो कॉल्ड अप पैसा कॉल्स में आता है। जैसे आपको अगर इशू कर दिया है कंपनी ने, तो आपका फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, कॉल्स में पैसा जमा होता है। तो जो पैसा कंपनी ने बुलाया है उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। जो नहीं बुलाया वो अनकॉल्ड कैपिटल। एंड कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा रिजर्व रखती है, वे फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो तब बुला देगी, तो इसके लिए उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो देखो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, 30,000 शेयर्स के ऊपर जो आपका 10 रुपये का शेयर था ना, तो कंपनी ने क्या किया, उस पर फिलहाल आपसे 5 रुपये मांगे, म्हणजे आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कंपनी को देने हैं। बाकी के जो 4 रुपये है कंपनी ने क्या किया, वो बुलाई नहीं फिलहाल, 1 रुपया हर एक शेयर के हिसाब से 30,000 रुपये रिजर्व रखे, भाई जब ज़रूरत होगी तब बुला देंगे। अब इसमें क्या हुआ, अब जितना पैसा मांगोगे उतना मिलेगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। किसी कोई पर्सन ने एप्लीकेशन किया होगा, उसके फ़िलहाल पैसे भरे होंगे या अलॉटमेंट के भरे होंगे, आपको ये अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये क्या होता है, ये आपको अकाउंट्स के 8th चैप्टर में समझ जाएगा, एज उसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है इस चीज़ों का। अब देखो फिर इसमें बेटा क्या हुआ, कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल कितना आया आपके पास, सिर्फ 20,000 शेयर का पैसा आया, 10,000 शेयर का आपके पास पैसा ही नहीं आया, तो 1 लाख तो मिल गया, कितना नहीं मिला, 50,000, तो वो क्या होगा आपका कॉल इन अरियर्स, म्हणजे वो पैसे आपके डूब गए, फिलहाल तो डूब गए। नेक्स्ट जब अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज हो जाएगा तो इसको एज अ बैड डेट करके कंपनी दिखा देती है। ओके, देखो आगे देखो, अगर पेपर में सवाल आता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, तो ये डायग्राम निकालना मस्ट है, क्योंकि ये डायग्राम निकालोगे तो इसके ऊपर ही आपको सामने वाला एग्जामिनर रहेगा 2 से 3 मार्क्स दे देगा, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करने हैं।